Introduce yourself. Ma'am, my name is Akshay Avasthi and I have pursued my law degree from RGNL Patiala. I graduated in year 2020 and after that I enrolled myself into LLM, which I pursued from NLSIU Bangalore, and since then I have been preparing for judiciary. In which branch you do your LLM? Ma'am, business law. Business law. And now it's your second chance, second time. Yes, ma'am. First time, क्या हुआ? What happened first? what happened in the... So first time I couldn't even clear the prelims. It was just after my LLM, just 1 month after it. So And only prelim. yes, ma'am. And what is your favorite subject? In which you are comfortable? As in I have read all the subjects, but Evidence Act is what I like to read the most. Evidence Act. There are certain reforms in the new Evidence Act. Yes, What are those? ma'am. So, Particularly one or two. ma'am, mostly there is inclusion of electronic evidences in the current new laws, and there has been certain changes as to considering electronic records as primary evidences. These are certain changes. कोई स्पेसिफिक सेक्शन जो अभी रिपील हुआ है एविडेंस एक्ट में आपको लगता है? Section that has been repealed, sir, I am not aware. अच्छा, कितने सेक्शंस में चेंजेस हुए हैं? Sir, that also I am not aware. अच्छा, अक्षय, आपका नाम अक्षय है, तो अक्षय तृतीया हम एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. Yes. Have you heard about it? Yes. क्या इंपॉर्टेंस है फेस्टिवल की? Sorry, sir, I am not aware of that. आपके नाम से एक फेस्टिवल आता है अक्षय तृतीया. Yes, sir. अक्षय का मतलब क्या है? Sir, Akshay means indestructible or ओके. Pardon? Akshay means? indestructible. Yes. अच्छा, रामायण में भी कोई कैरेक्टर था अक्षय? Yes, sir. Akshay was, sir, I'm not sure, but he was son of Ravan. Son of Ram. Ravan. Ram. Ravan. Yes. Akshay is Ravan. now one important hero in the film industry. Yes, ma'am. You know very well, I think. Yes, ma'am. रामायण का नहीं जानते हो लेकिन उसको जानते हो. Ma'am, I can remember the line from Hanuman Chalisa, Akshay Kumar ko maar sangara, but I'm not aware if he was his son or his brother. अच्छा, हनुमान चालीसा किसने लिखी थी? Sorry, sir, I'm not aware. अच्छा अक्षय, अभी जो आपने रिसेंट पढ़ा है कुछ लद्दाख को लेकर अभी कुछ कंट्रोवर्सीज, कुछ प्रोटेस्ट हुए हैं. Yes, sir. कैन यू ब्रीफ अस अबाउट इट? So the protest is concerning towards implementation of inner line permit in Ladakh, and also like it is a union territory right now with Jammu and Kashmir. So the representative from there, an influential person named Sonam Wangchuk, he is protesting in सो Delhi. एग्जैक्टली क्या डिमांड है? कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर उनकी क्या डिमांड है? So as far as I know, it is concerned to implementation of inner line permit in Ladakh. सो किसी पर्टिकुलर शेड्यूल में वो इंक्लूड करने की डिमांड नहीं कर रहे थे? Sir, I think it is 6th schedule. 6 शेड्यूल में. Yes, sir. तो कुछ स्पेशल होगा अगर 6 शेड्यूल में? कोई और स्टेट है 6 शेड्यूल में है? Yes, so there are many other states, tribal states in 6th schedule. कैन यू नेम एनी ऑफ द स्टेट, एनी ऑफ दैट स्टेट? So Assam is one and Tripura is one. Yes. सो कुछ स्पेशल बेनिफिट मिलते हैं उनको? Yes, sir. क्या बेनिफिट मिलता है? So that I'm not aware, but there are certain different local regimes that are allowed to rule there, as in their local administration, which is different from the constitution, and that is permissible to operate in such states. And also some provisions like inner line permit is applied there, wherein any outsider needs to require permission in order to settle or do business there, something on those lines. ओके. अभी ना बांग्लादेश को लेकर काफी न्यूज आ रही थी Yes, कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज का परसिक्यूशन हो रहा है. yes. सो इंडिया में कोई लॉ है जो उनके लिए कुछ प्रोविजन क्रिएट करता है बांग्लादेशी हिंदूज के लिए? No, sir. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं. No, sir. तो अगर कोई बांग्लादेश में मान लीजिए हिंदूज हैं और उनको मान लीजिए अभी इंडिया है, उनको ये लगता है कि बांग्लादेश में अभी जो सिचुएशंस हैं
उससे उनको लग रहा है कि उनका परसिक्यूशन हो रहा है। तो इंडिया में कोई लॉ है जो उनको सिटीजनशिप परमिट करता है? So not as such, they can come as refugees in India, and India is not signatory to the Refugees Commission. So at the end, they have to go back, and for the time being, until their stay is safe, their safe stays can be ensured from तो the Bangladeshi सिटीजनशिप government. अमेंडमेंट एक्ट क्या है फिर? CAA? So that is an लेट्स से एन एग्जांपल, Yes, मैं sir. एक बांग्लादेशी हिंदू हूँ और मुझे लगता है कि बांग्लादेश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है Yes. और मुझे इंडिया में आकर सिटीजनशिप चाहिए, yes. तो क्या कोई प्रोविजन है? पहले CAA क्या है? What is CAA? So this is a new Citizenship Amendment Act, and it provides. न्यू कहाँ citizen- लिखा हुआ है न्यू? सर ने पूछा है CAA. Yes, Come to the ma'am. point. So the previous Citizenship Amendment, Citizenship Act, which I think it is of 1955. So this is an amendment to that, which provides citizenship to minorities from around our neighborhood, which is Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, and minorities include Hindus, Sikhs, Jains, and Parsis and Buddhists. So this is a faster way of awarding them citizenship, and there has been a cut-off date which has been mentioned, which is तो सर ने यही तो पूछा आपसे कि बांग्लादेश में अगर किसी का परसिक्यूशन हो रहा है माइनॉरिटी का, हिंदू वहाँ माइनॉरिटी है, yes, yes. तो वो क्या CAA के तहत अप्लाई नहीं कर सकता? So directly they cannot. Firstly, they will be governed by Refugee Convention and the international obligations which we have to prevent refugees. And post that, residing in India and fulfilling the conditions under the new Citizenship Act, then they can be awarded citizenship. अच्छा अक्षय, मान लीजिए वो इंडिया आया था, इंडिया में उन्होंने आधार कार्ड बना लिया, Yes, sir. राइट, रिफ्यूजी ने, तो उसको क्या राइट्स मिलेंगे जो बाकी सिटीजन्स को मिलते हैं? No, sir. क्यों आधार कार्ड इज नॉट ए प्रोसेस फॉर द आइडेंटिफिकेशन? No, ma'am, यूजलेस है क्यों आधार but कार्ड? it is not equivalent. आधार के तो वो कैसे जाए? आधार के बारे में तो बहुत ओपिनियन फ्रेम हुई Yes, है. ma'am. Yes. What But is it? it is not equivalent to granting a citizenship automatically. This is just a document, and this is maybe one of the part of the document which people can give for identification, but it is not equivalent, or making an Aadhaar is not an equivalent to giving citizenship. Well, it is not a significant document regarding identification. For citizens it is, and for other people as well, but not a very prominent document for. And what about voter ID, election card? That is also a right given to citizens only, ma'am, and a refugee cannot vote. तो दोनों में से कौन ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, वोटर आईडी कि आधार? Ma'am, if one has to get citizenship, then voter ID is. अब वोटर आईडी में किसी ई मित्र पे जाके कुछ करेक्शन करवा सकते हैं क्या वोटर आईडी? Yes, ma'am. और आधार में Yes, ma'am. ई मित्र पे जाके वो कर सकते हैं क्या बिना किसी? There are dedicated Aadhaar booths which are in banks or certain data centers. आपके पास वोटर आईडी है, Yes, ma'am. आप ई मित्र पे जाके उसको करेक्ट करा सकते हैं? Not voter ID, sir. तो मैम ने पूछा ना, वोटर आईडी कार्ड में आप ई मित्र पे चेंज कर सकते हैं आप? Sorry, ma'am. I thought if at all any आधार correction की can be बात made. नहीं है, वोटर आईडी की इलेक्शन वाला जो कार्ड होता है ना उसकी बात है. Pardon, ma'am. I misheard your question. I thought you said can there be any change made to your. अच्छा मान लीजिए voter ID? कि यू आर मेजर और आपका जो वोटर लिस्ट आया है उसमें आपका नाम नहीं है, तो ये आपके कौन से राइट को वायलेट कर रहा है? Ma'am, आप right उसके to- लिए कोई एक्शन ले सकते हैं क्या? Ma'am, right to vote. कौन सा राइट है राइट टू वोट? इट्स ए फंडामेंटल राइट, इट्स ए लीगल राइट और a constitutional right. Ma'am, it is constitutional right, but recently the Apex Ashby Court- versus White, Yes, ma'am. it's a famous case. Yes, ma'am. तो रटा होना चाहिए. बताओ, याद करो. So, yes, ma'am. In that particular case, that is under tort law, and the person was not allowed to vote, and he then filed a suit for damages in that particular case. And ma'am, in Anu Baranwal versus Union of India, the Supreme Court equated right to vote
as fundamental right. नहीं, राइट टू वोट इज अ फंडामेंटल राइट और लीगल Legal राइट? right. This is a question. Sir, it is a legal right and also it is provided in the constitution as constitutional right, which is under Article 326A, but also under the People's Representation Act. So it is a legal right, but its gravity has been equated to the fundamental rights in a recent year. It's due to judicial activism, Yes, ma'am. not by any act of law. Yes, ma'am. अक्षय, आपने अभी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एक्ट के बारे में बात की। सो अगर कोई पॉलिटिशियन है, उसको कोर्ट ने अगर 3 साल के लिए पनिशमेंट दिया, तो उस सिचुएशन में उसके पास क्या इलेक्शन फाइट करने का राइट रहेगा उसके पास? No, sir. तो ये कौन से केस में आया था ऐसा कुछ? Sir, I can't remember the case, but the recent turmoil in the Rahul Gandhi case, this was the. बट एक बहुत फेमस लैंडमार्क केस था इसको लेकर, जिसमें कि ये जजमेंट आया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कि पॉलिटिक्स में क्या होना चाहिए, जितने भी ऐसे लोग हैं जिनका कन्विक्शन हुआ है, जितने पॉलिटिशियंस हैं, उन्हें कितने टाइम में डिस्क्वालीफाई करते हैं? कोई पर्टिकुलर I टाइम? can't remember the case, but I can remember certain decisions on People Representation Act, but and criminalization of politics, but not this particular case. एंड यू नो इलेक्शन लड़ने से पहले पूछा जाता है कि आपका कहाँ का कन्विक्शन हुआ, आपकी प्रॉपर्टी क्या है, Yes, ma'am. पूछा जाता है ना, उसको क्या पूछा जाए? To prevent criminalization of politics, this was in Lily Thomas versus. सर वही पूछ रहे हैं कि कोई ऐसा केस आया क्या? Sir, I was not लिली aware थॉमस, of. ये तो लिली पूछ थॉमस रहे कौन थी? पता है आपको? I was not aware of the ratio of that particular case because there have been a line of cases on criminalization of politics. So. वो लैंडमार्क केस लिली थॉमस का ये। लिली थॉमस एक सुप्रीम कोर्ट की सबसे, आप बोल सकते हो कि सबसे स्टार्टिंग में, वो उनके बारे में इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने सबसे पहले LLM करने वाली, वो इंडिया की सबसे पहली लेडीज में से एक थी, राइट? फिर वो मद्रास से आती थी, फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी से पिटिशन फाइल की। फिर लिली थॉमस का एक और केस था जिसमें कि लोग शादी करने के लिए जस्ट कन्वर्जन कर रहे हैं, राइट? मुस्लिम कन्वर्ट हो रहे हैं शादी करने के लिए, तो उसके ऊपर भी उनका लिली थॉमस का एक केस है, राइट? तो वो इस केस में पिटिशनर थी। मेरा लास्ट आपसे क्वेश्चन ये है, फिर मैम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप बैंगलोर में थे, तो बैंगलोर में कौन सी इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री कौन सी है? Sir, it is called Collywood. So, a clarity on my part, sir. I did not go to college. It was Hollywood? in online. और कॉलीवुड, you Tamil said is Collywood. कॉलीवुड तो मतलब वो तमिल है, तेलुगु है या कन्नड़ है, कौन सी Sir, लैंग्वेज? it is Kannada. कन्नड़, ठीक है। तो इसको लेकर अभी एक जस्टिस हेमा कमेटी की एक रिपोर्ट आई है, Yes. Sir. जस्टिस हेमा कमेटी की एक रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट आपने पढ़ी है, अभी सुना है उसकी इम्प्लीमेंटेशन? No, sir. ओके, ठीक। अच्छा, नए कानूनों में जो किसी भी केस का ट्रायल है वो कितने टाइम में कंप्लीट करना है? Sir, I'm not aware of the trial period. तो आप जज बन जाओगे तो आपको ट्रायल कितने दिन में कंप्लीट करना है ये तो पता होगा। Sir, there is no outline in the previous laws to complete the trial, but I'm not aware. नए कानून के बारे में पता है आपको? Yes, sir. In the BNS part, I'm aware. Okay. BNSS part. 3 जो पुराने कानूनों को रिप्लेस किया है, उन तीनों कानूनों का कौन से ईयर में वो बनाते हैं, वो पता है आपको तीनों? Yes, sir. कौन कौन से? Sir, IPC 1860 and Indian Evidence 1872 and CRPC 1973. ठीक है मैम। चलिए, आपने स्पेशल अचीवमेंट्स में नो लिखा है, Yes, ma'am. I was not aware to fill in. यू आर नॉट अवेयर। अचीवमेंट की डेफिनेशन क्या है इन जनरल? And as such, I think it is a very personal thing and Okay. there's no special metric to that. अचीवमेंट इज पर्सनल थिंग। Ma'am, what- अचीवमेंट तो शोर मचा के बोलता है। Ma'am, but degree and subjectivity can differ See, you from person cracked to CLAT, person. you cracked UG CLAT, PG CLAT, ये अचीवमेंट नहीं है। You cleared मेंस मेंस ऑफ एग्जाम, आर्चर्स। ये अचीवमेंट नहीं है। कितने लोग क्लियर करते हैं? Yes, sir, these can be called as achievements, but I was not sure how many to mention. अच्छा, What अक्षय, to mention. यस अक्षय अभी BCI जो है, इट्स एन एपेक्स बॉडी फॉर द लीगल एजुकेशन, उनकी अगेंस्ट कोई एक प्रोटेस्ट हो रहा है, हैव यू हर्ड दैट?
Ma'am, I'm not aware about that. इट्स इन द हाईलाइट्स कि उन्होंने कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ पास्ट रिकॉर्ड के बारे में कोई वो किया है, एक नोटिस जारी किया है. यू हैवंट गॉन I've थ्रू. not read about it. Because you are LLM, यू शुड, you have to know. है ना. अच्छा ये बताइए आप मुझे कि लेटेस्ट कोई भी एक जजमेंट जो आपने पढ़ा हो. बहुत सारी जजमेंट्स आ रही हैं अभी कोर्ट की, कोई एक आप मुझे बता दीजिए जो आपके ध्यान में हो. Ma'am, I read Satyendra Kumar Mittal versus CBI. सो व्हाट वाज द केस? Ma'am, it was pertaining to bail provisions in our criminal laws, and the Apex Court said that bail should be the rule and jail should be the exception. And the Supreme Court also passed various guidelines, right, pertaining to governing bail law in India. The court also said that the Parliament should come up with a bail act wherein the lower judiciary and all other courts should follow a strict rule of granting bail and preventing incarceration of prisoners. ओके. अच्छा यू फ्रॉम पटियाला, लास्ट क्वेश्चन, यू फ्रॉम पटियाला. पटियाला RGNUL में एक प्रोटेस्ट चल रहा है अभी. Yes, sir. आर यू अवेयर ऑफ दैट? Yes, sir. क्या प्रोटेस्ट है? Sir, it is concerning to the Honorable Vice Chancellor of the college when he entered the female hostels and women hostels without their permission, and he also entered in some students' room that I read from now. So what is your opinion about it? मतलब it was right to entered in the girls hostel without any permission. VC entered in the hostel Yes. and went to the rooms of the girls. Yes. So was it correct? So, sir, there is a protocol in place wherein no one is allowed to enter the girls' hostel there, and even parents have to take permission. So, the VC sir did breach it, and I think to that extent it is not right. Okay. He is the head of the institution. Yes, ma'am, but also if there is a protocol and mechanism in place, then I don't think he should also want. But he was accompanying a woman teacher and The warden. Yes, sir. So no male member is allowed in women's hostel as far as I know. So don't you think so prior warning होनी चाहिए थी या Yes, sir. If there was a Prior prior notice. notice that I have to do an inspection or something on. so those did he lines. commit any crime? So crime, not per se. It was considered a breach of privacy, but as such, he hasn't committed. बट crime. अक्षय आपको नहीं लगता कि अगर प्रायर नोटिस होता तो फिर इंस्पेक्शन कैसे होता? इंस्पेक्शन को Surprise. सरप्राइज. सरप्राइज और इंस्पेक्शन तो अपने आप में एक सरप्राइज होता है. Sir, अच्छा इसके रिवर्स होता तो एक वुमन वीसी होती और बॉयज हॉस्टल में वो जाकर और चेक करती बॉयज को कि वो लेकर यूज कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या यूज कर रहे हैं, तो भी क्या यही हाल होता है? क्योंकि हमारे इक्वलिटी है, yes, sir. आर्टिकल 14 इज देयर, तो वो जाके करती चेक, तो क्या भी इसी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट होती है? Ma'am, I don't think so. And या बॉयज आर सो ओपन, उनको तो कोई भी देखने आ जाओ, इन योर ओपिनियन? I don't think so, ma'am. That could have been done. The same turmoil would have followed, but since women have been awarded a special status under our constitution, and also the privacy of women, and there are different other offences that we made to prevent their privacy, and hence the entering of the male member was considered so grave and egregious that the protest happened. Where it is mentioned that women are given a special status, as you said in the constitution. Article 15 subclause 3 provides for state to make special laws for women, and So that means the special status to enter any of the premises. How you'll interpret it? no, ma'am, It is not a special Women status VC given can to the go. women. Yes, Women ma'am. VC can check the boys in their hostel rooms, Yes, ma'am. then why male VC? Ma'am, the dignity part has been prevented under even IPC and the new laws for women. For And, yes, ma'am, and it holds a more value than men. That is the present scenario. It is a part of debate. Okay. Man doesn't have any dignity. So as of now in the laws, there is nothing as such. Okay. आप वेट कीजिए आपको फीडबैक. Welcome. Thank you.
Here is your code. Ma'am, I borrowed it from another camp. Okay, please. अक्षर, एक तो आपको हिंदी भी बोल रही है, राइट? आप जब आरजेएस बन जाओगे तो ऑर्डर किस में लिखवाओगे, इंग्लिश में कि हिंदी में? हिंदी में लिखवाओगे। तो आपको पैनल को ये तो ट्रस्ट करवाना है कि मुझे हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है। मैंने इसलिए आपसे इंटेंशनली मैं हिंदी में क्वेश्चन पूछ रहा था ताकि आप हिंदी में भी आंसर करो। आपको दिखाना है कि आप एक डायनेमिक पर्सनैलिटी हो, राइट? और आपको आंसर्स पता थे, आपको सीए पता था, लिली थॉमस केस पता था, लेकिन आप पता नहीं नर्वस जब आपसे सवाल पूछा तब आपने मना कर दिया। एक्सप्लेनेशन में आप घूम फिर के वहाँ आ गए। जैसे सीए पूछना चाहते थे, उसमें आपने भाई अगर जो माइनॉरिटी बाहर की है और परसिक्यूटेड है तो वो तो अप्लाई, उसी के लिए तो कानून बना है सीए। और दूसरा, सबके साथ आपको आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। जिनको आप आंसर कर रहे हो उनको भी देखो, बाकी लोगों को भी आपको देखना है, ठीक है? थोड़ा सा आप जो हैंड आपने एकदम नीज पे रख के, आप जैसे एकदम वैसे नहीं बैठना, आप कंफर्टेबल होकर बैठिए। रिसेंट जो अपडेट्स हैं लीगल फील्ड में उनके बारे में थोड़ा स्टडी करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की बेंचेस के बारे में, ऑनरेबल सीजीआई के बारे में, फीमेल जजेस कितनी हैं। आपने कहा कि मैंने बैंगलोर से किया है, तो अभी जस्टिस सेवा कमेटी की रिपोर्ट आई है अभी एक। सर मलयालम उस पे इंडस्ट्री पे है या कन्नड़ इंडस्ट्री पे? मलयालम जो मलयालम पे थी वो। नहीं तो आप बताते ना, ये तो अरे भाई ये तो सवाल है, ये पूछ रहे हैं, आप कहते हैं कि साहब मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर है, यही तो चेक कर रहे थे। हम तो हेमा, ऑनरेबल जस्टिस हेमा कोहली कमेटी की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं ना। यू हैव टू करेक्ट इट। अच्छा, जिसमें लॉ नहीं है वो भी पूछ सकते हैं। आप बोलते हैं कि नहीं नहीं, देयर इज नो एनी लॉ। Ma'am, I was aware about the news, but not the committee report, so I did not. अब अक्षय पता है, आपका नाम सुनते ही फर्स्ट क्या दिमाग में? अक्षय तृतीया, क्योंकि आपसे जो पहली कैंडिडेट आए थे ना वो भी, अब अक्षय तृतीया राजस्थान में क्यों सेलिब्रेट करते हैं? आका तीज, ऑल्सो नोन एज। देखो आपका नाम, आपका प्लेस, नेटिव, इनके बारे में तो सारी जानकारी होनी चाहिए आपको। हनुमान चालीसा तुलसीदास जी। हाँ यार, ये लास्ट लाइन है, अगर आप पढ़ते हो तो है ना, आपने हनुमान चालीसा कोट किया, इसलिए मैंने पूछा कि किसने लिखी है। इंटरव्यू वो पढ़ते हैं हनुमान आपने चालीसा। बहुत अच्छे जवाब दिए, लेकिन ये जवाब बहुत सिली मिस्टेक है भाई। हनुमान चालीसा एक 8 साल 4 साल 6 साल के बच्चे को भी पता बिल्कुल होगा। पता है। अब अक्षय कुमार आपने बताया रावण का बेटा था, हनुमान जी ने मारा था उसको, ठीक है, राइट? क्योंकि जब वो लंका गए थे तब वहां पे उन्होंने उसको, राइट, अशोक वाटिका सुना होगा, तो वहां पे अक्षय कुमार था, उसको हनुमान जी ने मारा था, राइट? आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए, आपके नाम से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं, आपके नाम की यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है। फिर अक्षय तृतीया पूछा, अक्षय तृतीया लोग गोल्ड खरीदते हैं, अक्षय तृतीया पे, राइट? और अलग अलग जगहों पर राजस्थान में खिचड़ा बनता है, पर्टिकुलर जो बीकानेर रीजन है वहाँ खिचड़ा बनता है, शादियाँ होती हैं, मैक्सिमम सबसे इम्पोर्टेंट, बिना किसी मुहूर्त के, बिना किसी मुहूर्त के। सबसे बड़ा शादी का मुहूर्त अक्षय तृतीया पे होता है। और ये जो चाइल्ड मैरिज रेस्टोरेंट एक्ट है वो स्पेसिफिकली इसीलिए आया है इसीलिए आया कि उसमें चाइल्ड मैरिजेस बहुत होती है। बहुत होती थी, ये इतना शारदा important एक्ट है वो पूरा बना ही आखा तीज के लिए है। तो राइट, तो आपके नाम से इतने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि आप पूरा इंटरव्यू का डायरेक्शन जो है वो ना चेंज कर नाम के सकते राउंड ही हो जाएगा। हैं। भाई मेरा नाम सागर है, कोई पूछे सागर कितने हैं, महासागर कितने हैं, मुझे अगर यही नहीं पता है तो बाकी चीज़ें तो मुझे क्या पता होगी। So festival thing I was not aware कि मतलब specific क्या होता है। आपको राजस्थान के लोकल कस्टम्स पता होने चाहिए। You belong to राजस्थान और Yes ma'am, I'm from Jaipur only. यू आर फ्रॉम जयपुर, फिर पता होना चाहिए अक्षय। यू कांट टेक अ मतलब you have to know। क्योंकि आपका सब रहेगा वहाँ पे ब्रीफ। आपको देखिए, एक यहाँ तक आप पहुँचे हैं ना, बहुत लोगों में से आप जाकर यहाँ तक पहुँचे, और अब आप यहाँ आए हैं, ये आपका मौका है। अब हम चाहते हैं जो रियल इंटरव्यू आपका वो इससे बेनिफिट लेकर आप अच्छे कॉन्फिडेंस से देंगे। आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होना चाहिए, बिल्कुल जवाब सटीक तो, और नहीं जानते हो तो एक लाइन में बोल दो सॉरी। मैम जिनमें जैसे को थोड़ा डाइसी और उस टाइम पता नहीं है, जैसे मुझे लिली थॉमस का डाइसी हो नहीं, आप कह दीजिए मुझे कुछ पोज चाहिए 1 मिनट का, 1-2 सेकंड का पोज ले लीजिए। नहीं मैम, उसके बाद भी जैसे कोई बात नहीं तो आप पोलाइटली कह दीजिए, It's मुझे not बहुत best, हाँ। मैं स्पष्ट नहीं हूँ इस बारे में, बस, हाँ, लेकिन not जहाँ sure। तक मेरा ख्याल है बस। ये है, जहाँ तक
पर मुझे क्लैरिटी नहीं है। इतना ही बोलना है अक्षर आपको। को इस तरीके से काम नहीं करेगा। आपने इनकरेक्ट किया -2 आपका एक सही आंसर जो है ना आपको मार्क्स दिलवा देगा। Okay, sir. लेकिन आपका एक आंसर उतना इम्पैक्टफुल होना चाहिए, उतना इफेक्टिव होना चाहिए कि हमें सुन के वाह क्या आंसर दिया। Okay. इम्प्रेसिव एंड ऐसा ट्रूथफुल। अच्छा, गेट रेडी फॉर इट। आप ये जो पैनल है, ये आपका रियल इंटरव्यू होता तो इस बात के लिए कॉन्फिडेंस रहिए कि वी डोंट नो एनीथिंग और आप सब कुछ जानते हो, क्योंकि एग्जाम आप क्लियर करके आए हैं। Okay. हम तो केवल और केवल आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड को जज करने आए हैं। इसीलिए आप जो बोलेंगे ना, आप बोलेंगे कि रामचरितमानस में ये रावण का बेटा था अक्षय। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या होगा कि रावण के कितने बेटे थे, या रावण का क्या कंट्रीब्यूशन है, वो कितना विश्वविख्यात पंडित था कि राम ने भी बुलाया था पूजा करने को। तो आप ये डायरेक्शन दे देंगे पैनल को और आपका इंटरव्यू अच्छा हो जाएगा, लेकिन कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको। Okay. ठीक है, आप चाहें तो इंटरव्यू को रीशेड्यूल भी कर सकते हैं, बाहर मैम उनसे पूछ लीजिए अवेलेबिलिटी। This is your first mock interview or you have faced previously? This was as in mock interview or the Mock interview. mock session now? Second. तो यू आर फीलिंग बेटर देन द बिफोर आज? Yes, no, sir. इसका मतलब आपका भी एक्चुअल इंटरव्यू From 22nd. तो आपके पास टाइम है, यू कैन रिपीट इट, नो प्रॉब्लम। इससे आपको बेनिफिट होगा ना। Yes, no. ओके, ऑल द बेस्ट। Thank you, sir.